خطیب ہیں ان کا ہمیں سماعت کرنا ہے۔ بس آپ حضرات کے سامنے چند باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے اپنے تعلیمی اداروں کو بچانا، اور جس محاذ پر ابھی ادارے نہیں بنے ہیں وہ ادارے قائم کرنا۔ کرناٹک کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا سوشل میڈیا پر کتنا وائرل ہوا۔ آپ اس کو صرف ایک چنگاری نہ سمجھیں، اسے صرف ایک ہوا کا جھونکا نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک مکمل آتش ہے جو ہماری بستیوں کو نگلنے کے لیے بےتاب ہے۔ ہماری بہن بیٹیوں کی عصمتیں، ان کی عزتیں، ان کے سروں کی چادریں نوچنے کی پلاننگ چل رہی ہیں، مگر دیکھیے ایک کنیز فاطمہ زہرا نے، ایک سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ زینب کی کنیز نے جس جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس نے رہتی دنیا تک یہ بتا دیا ہے کہ کربلا بپا ہوا تھا تو تم یہ نہ سمجھو کہ جانشین کربلا ختم ہو گئے ہیں یا کربلا سے محبت کرنے والے ختم ہو گئے۔ لنچنگ کے اس دور میں جب مردوں کو خوف ہوتا ہے ایک جھنڈ کو دیکھ کر، ایک موت کو دیکھ کر ٹیرر محسوس ہوتا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے، ایسے جھنڈ کے درمیان جبکہ وہ اپنے ریلیجیس سلوگن لگا رہے تھے، اس بھیڑ میں اس بچی نے جو کردار ادا کیا ہے، خدا کی قسم لوگوں آپ کے اور ہمارے بیٹوں نے بھی اتنا نام روشن نہیں کیا ہوگا جتنا اس کرناٹک کی بیٹی نے پوری امت کا نام روشن کر دیا ہے۔ اور یہ بھی پیغام دے دیا کہ نام روشن کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہی ہو، اگر بیٹی بھی کنیز فاطمہ زہرا ہے، بیٹی بھی اگر سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیز ہے، بیٹی بھی اگر صحیح معنی میں فاطمہ الزہرا کے در کی کنیز ہے، تو اللہ کی قسم وہ صرف ماں باپ ہی کا نام روشن نہیں کرتی ہے بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کر دیتی ہے۔ اور فیشن کے راستوں سے، بدکاریوں کے دروازوں سے شہرت نہیں ملتی۔ دیکھو اسے بھی شہرتوں کا تاج ملا، عزتوں کا تاج ملا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت اپنانے کے بعد ملا، حجاب کی برکت سے ملا، اور ایسا تاج ملا میرے عزیز ساتھیوں کہ رہتی دنیا تک ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا ہے، لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا ہے، کہیں گے لوگ فخر سے یہ صدیوں تلک دنیا نے نقاب میں انقلاب دیکھا ہے، اور ایسا انقلاب پیدا کیا، اللہ اکبر، ایسی صدا بلند کی، تو اب اس سے جذبات تو آتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لوگ پیسہ ہونے پر میل لگاتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں، کارخانے لگاتے ہیں، یہ سب کام کرو، اس کے علاوہ مجھے بتاؤ سنبل سے پورب میں جب آپ آتے ہو تو القدیر کے علاوہ تمہارے پاس سلیقے کا کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں ہماری بچیاں حجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ سبحان اللہ جی۔ آپ کی آلو کی فصل اچھی ہو جائے تو سارا پیسہ شادیوں کے حوالے کر دیتے ہیں آپ، سارا پیسہ، یا کارخانے لگائیں گے، میلے لگائیں گے، ارے ایجوکیشن کے لیے ادارے بناؤ، پیسہ بھی کماؤ، بچیوں کو تعلیم یافتہ بھی کرو۔ میں کہتا ہوں یو پی ایس سی بورڈ، جتنے بھی ہمارے کنٹری میں تعلیمی بورڈ ہیں انہی سے مانیتا حاصل کرو اور اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، دوسروں کی بچیوں کو بھی پڑھاؤ۔ جب ہمارے اپنے ادارے ہوں گے تو کس کی ہمت ہوگی جو ہماری بیٹی سے آ کر کے کہہ سکے کہ چہرے سے نقاب اور سر سے حجاب ہٹاؤ۔ آپ جو ہے سلیبس ان کا رکھو مگر کلچر مدینے والے آقا کا رکھو۔ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرو اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرو۔ میں خانقاہوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو قدم خانقاہ ماہرہ مطہرہ نے البرکات کی شکل میں تعلیمی ادارہ دے کر کے تمہیں دیا ہے، وہ قدم ساری خانقاہوں کو اٹھانا چاہیے تاکہ ہماری بچیاں ماڈرن ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھے، ان کے پاس دنیا کی تعلیم بھی ہو۔ اور یہ کام اب آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اور نیتاؤں سے بھی کہو جب وہ ووٹ مانگنے آتے ہیں ان سے کہو ہمیں ہمارا کچھ کام کر کے نہ دو، بلکہ جگہ جگہ پرائمری اسکول بناؤ، انٹر کالجز بناؤ، بچوں کے لیے الگ بناؤ، بیٹیوں کے لیے الگ بناؤ، یہی ہمارا کام ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں علماء کو راجنیتی پہ نہیں بولنا چاہیے، ارے بے وقوف ہو، یہ علماء ہی ہیں جو اندھیرے میں
तुम्हारी उंगली पकड़ के चलने लगे तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे और तुम्हें समंदर से निकालकर साहिल तक पहुंचा देंगे, वरना याद रखो अंधेरों में भटकते रहोगे, दुनिया तुम्हें आपस में लड़वाती रहेगी, तुम्हारी पार्टियां बंदियां लोग कराते रहेंगे। इसलिए उलमा से फीडबैक लेते रहो। वो उलमा ही थे, कौन थे? अल्लामा फजल हक खैराबादी, कौन थे? अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। इसलिए मैं आपको भी मशवरा देता हूँ, जो भी लीडरशिप आए आपके पास उससे कहो हमारे हैबतपुर, ये जनाबे वाला नसीरपुर और होल से लेकर के इधर भवानीपुर आ जाओ, ये आपका गोविंदपुर हो गया, मंडी किशनदार सराय, चौधरी सराय, हसनपुर, ये कितनी बस्तियां हैं। हमारी बच्चियों के लिए कम से कम एक तो इंटर कॉलेज होना चाहिए। आप जिस भी नेता को वोट दो, मैं किसी के लिए अपील नहीं करता, आपकी चॉइस है, आप जानो, मगर जिसको वोट दे रहे हो उससे कहो मियां हारो या जीतो, ये फैसला करो कि हमें अपनी बच्चियों के लिए तालीमी इदारे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अज़मत इस्लाम अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही। अगर मेरी बात सही हो तो हाथ उठा करके मेरी बात की तारीफ करो, जरा हाथ उठाओ जोर से। तालीम चाहते हो कि नहीं? बोलो तालीम चाहते हो कि नहीं? अपने बेटों के हाथ में, अपने बेटों के हाथ में कलम दो, अपनी बेटियों के हाथ में कलम दो, और याद रखो बेटियों से भी नाम रोशन होता है। ये कर्नाटक की रहने वाली बेटी मुस्कान, उसकी बहादुरी के चर्चे आज बताओ कहाँ नहीं हो रहे, किस घर में उसके चर्चे नहीं हो रहे। उसकी जुर्रत देखो, उसकी बहादुरी देखो, उसके कलम की ताकत देखो, और उसकी इंग्लिश स्पीकिंग देखो, और उसके साथ साथ दीनी तरबियत देखो, उसके माँ बाप की तरबियत का असर देखो। उस बच्ची ने उस झुंड से, उन डरपोक कायर लोगों से, उन आतंकवादियों से कह दिया कि जंग में काजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। तो बताओ क्या आप अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते? बोलो पढ़ाना चाहते हो कि नहीं पढ़ाना चाहते हो? जोर से बोलो। तो जो भी तालीमी इदारे चला रहे हैं, मैंने अपील की है आप लोगों से, सबसे, अल्लाह आपको दौलत दे, या नहीं है तो चंद लोग मिल करके यार प्राइमरी स्कूल तो बना ही सकते, जूनियर मदरसे वालों की हिम्मत तो देखो। जो भी आलिम, जो भी इमाम है, जहाँ जहाँ उसने मकतब बनाया, मदरसा बनाया, तेरे मेरे आगे हाथ फैलाया, मेहनत की, उसने तुम्हारे बच्चों के सीनों में कुरान की दौलत को महफूज कर दिया। उन्होंने जो काम किया ताकत से ज्यादा कर दिया। सारा काम इनसे मत लो, बाकी काम किसी और से भी ले लो। एक जज है अपने दीपा सराय के, वो काफी टाइम उन्होंने ड्यूटी की अलीगढ़ में। देखो उन्होंने कितना अच्छा स्कूल बनाया, संभल में बनाया कि नहीं बनाया। बाकी हजरात को जो हमारे संभल के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, या राजनीतिक में अच्छी पकड़ रखते हैं, पैसा है उनके पास, यार उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बोलो जरा। ये नकाब वाली परेशानी तुम्हारे सामने आएगी, और आज ये बात कोर्ट के माध्यम से कही गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाए तब तक हिजाब पहन करके स्कूल ना आया। ये न समझे कि ये मामला सिर्फ कर्नाटक है। अरे यार कर्नाटक का भी है तो हमारे भारत ही का। हम फिक्रमंद तो नहीं होंगे तो कौन होगा? आज जो ताकतें बैठी हुई हैं, इस ताकत और इस ताकत के नाक का फना कुचलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो कलम का रास्ता है, वो तालीम का रास्ता है। इस रास्ते के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। और जहां तक हमें मिटाने की बात है, तो हसनपुर के मेरे भाइयों, राहत इंदौरी साहब इंतकाल कर गए, उनके 4 मिसरे सुनो और अपने दिल की हरारत ईमानी को ताजा करो। उन्होंने कहा था, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी फितरत डरा रहा है मेरी आदत डरा नहीं। करबला वाले डरते नहीं है, बल्कि मैदान में डटकर कॉन्स्टिट्यूशनल एतबार से मुकाबला करते हैं। संवैधानिक एतबार से जहां तक हिजाब की बात है, तो ये संविधान के आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के बिल्कुल विपरीत हमारे खिलाफ हो रहा है। अपने संविधान ने जो हक दिए हैं, उन हुकूक को पहचानो मेरे भाइयों। और मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो मिसयूज मत करो। इस मोबाइल के जरिए से अपने कंट्री की जो करंट पोजीशन है उसको हासिल करो और देखो कि दुनिया में हो क्या रहा है।
اپنے پاؤں پہ تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، بیساکھی پھر بھی بیساکھی ہوتی ہے۔ یہ بات تمہیں آج سمجھ آئے نہ آئے، وقت تمہیں سمجھا دے گا۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے آپ سے اپیل کی ہے۔ اچھا میل کیوں بناتے ہیں لوگ؟ تاکہ پیسہ کمائیں۔ وہ تو اداروں میں بھی کما لیں گے، اسکول میں آپ فیس لیے، نو پرابلم۔ آپ دیکھیے البرکات کبھی جائیے علی گڑھ میں 50-60 بیگھہ زمین میں اور روڈ، جو فنڈنگ رویل فیملیز کے بچوں سے ہوتی ہے، جو فیس کے ذریعے سے 400 بچیاں ایسی پڑھتی ہیں جن سے فیس نہیں لی جاتی ہے، وہ پیسہ ادھر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ میں خانقاہوں سے بھی اپیل کروں گا، ساری خانقاہوں سے، اور آپ حضرات سے بھی اپیل کروں گا، اپنی بچیوں کو کنیزان فاطمہ زہرا بنانے کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ بیٹیوں کے ہاتھ میں بھی قلم دو اور بیٹوں کے ہاتھ میں بھی قلم دو، پڑھاؤ، بیٹیوں کو بھی خود پڑھاؤ۔ آتے میرے پاس بھی لوگ باز کے حضرت صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا مایوس کیوں ہوتا ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے میرے حضور کا نسب بیٹوں سے نہیں، بیٹی فاطمہ زہرا سے چلا ہے۔ چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، دمکتا رہتا ہے کل آستان بیٹی سے، ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ تو آپ حضرات سے یہ غریب نواز کا مشن ہے، گھر گھر تک تعلیم پہنچانا۔ بولو زور سے، گھر گھر تک آواز آئے، گھر گھر تک بچوں کو پڑھاؤ، یہ من بنا کے جاؤ۔ اچھا ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے دیہی بستیوں میں یعنی دیہات میں بھی اب بہت سے لوگ علماء تو بنا ہی رہے تھے ماشاءاللہ، اس کی جو ہے نمبرنگ بڑی ہے، اضافہ ہی ہو رہا ہے، ڈاکٹر حضرات بھی کافی بن رہے ہیں۔ ایک چیز کی میں کمی محسوس کر رہا ہوں جس جانب ہماری توجہ نہیں ہے، وہ شہر کے حضرات ہوں یا دیہات کے، اور وہ ہے لوئر بنانے کی بھی ہمارے وہاں بہت کمی ہے، ہمارے وہاں ایڈوکیٹ کی بہت سخت کمی ہے۔ یاد رکھو ایڈوکیٹ اگر صلاحیت مند ہے، ٹیلنٹ ہے اس کے اندر اور ہمت و حوصلے والا ہے، تو دیکھو دلی میں سپریم کورٹ میں محمود پراچا کی ایکٹیویٹی دیکھو، اس بندے کی جرأت دیکھو، جب NRC کے خلاف کوئی بولنے تیار نہیں تھا، اس وقت اگر جامع مسجد کی سیڑھیوں سے کسی نے آواز دی تھی تو وہ سپریم کورٹ کے محمود پراچا صاحب نے آواز دی تھی۔ جو علماء بے گناہ جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے رہائی کے لیے بھی وہ قد و کاوش کرتے ہیں۔ تو حسن پور کے لوگوں یہ مت سوچنا کہ ہمارا بیٹا سپریم کورٹ کا وکیل کیسے بن سکتا ہے، ہم تو ایک دیہات میں رہنے والے، ہائی کورٹ کا بن جائے تو بڑی بات ہے۔ یار من جدہ وجدہ، جو محنت کرتا ہے اسے صبر کا پھل اور محنت کا پھل مل جاتا ہے۔ ہمارے بھارت کے راشٹرپتی رہے APJ ابوال کلام، وہ بھی ایک دیہات ہی کے رہنے والے تھے، اخبار بیچا کرتے تھے، غربت کا اندازہ لگائیے۔ مگر یاد رکھو غریب لوگوں، تم بھی یاد رکھو، کشتیاں جب لہروں سے ٹکراتی ہیں تو منزل تک پہنچ جاتی ہیں۔ تمہارے بیٹے جب محنت کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ دیہات کے رہنے والے ہیں یا شہر کے، امیر کے بیٹے ہیں یا غریب کے، اگر وہ محنت کرتے ہیں تو ایک اخبار بیچنے والے کا بیٹا بھی ملک کی سب سے بڑی کرسی یعنی کہ راشٹرپتی کی کرسی تک پہنچ سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھی، ان کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، وہ کسی بڑی فیملی کا ممبر نہیں تھے، وہ صرف اپنی محنت کے بلبوتے پہ میزائل مین رہے وہ۔ اور انہوں نے، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے یہاں پر، ان سے بھی کہوں گا، انہوں نے جملہ کہا تھا، میں نے ایئرپورٹ پہ بھی لکھے ہوئے دیکھے ان کے سینٹیز، اور آپ کے پلیٹ فارم پہ بھی دیکھے، یعنی اسٹیشن پہ بھی دیکھے ہیں، بس اسٹینڈ پہ بھی، دلی میں تو جگہ جگہ بڑے بڑے ہورڈنگ میں APJ ابوال کلام کی زبان سے اور ان کے قلم سے نکلے ہوئے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا خواب وہ نہیں ہے جو بندہ سوتے ہوئے دیکھتا ہے، خواب تو وہ ہے جو انسان کو سونے نہیں دیتا ہے۔ تو اپنا عزم لو، اپنا ویژن لو، اپنا پختہ ارادہ کرو۔ اور میں نے بھی یہاں اپنے کئی بھائیوں سے کہا ہے کہ دیکھو کتنی کمی محسوس ہوتی ہے، ادھر آ جاؤ آپ دھنیٹا سے اڑہول اور چندائن، پورا علاقہ خالی ہے، مدرسے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کی محنتیں اپنی جگہ ہیں، مگر اب ضرورت ہے ہمارے لیے کہ جونیئر اسکول ہماری بچیوں کے لیے سیکیور طریقے سے بنائے جانا چاہتے ہیں۔ بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اور سے بولو ذرا۔
मुझे बोलो सही है कि नहीं। अब मैं चूंकि मुझे पता है अभी प्रोग्राम आगे भी चलना है, चंद अशार हजरत सैयद नज़्मी मियां अलैहि रहमा के चूंकि गरीब नवाज का भी जिक्र है और उनके मिशन ही का मैं तस्करा कर रहा हूँ, ये सुनाओ फिर तेजी से बात आगे बढ़ाता हूँ। उनकी जान जमा के शीशे बदन मेरा, बदन मेरा उनकी बंद मोती में सारा पागपन मेरा, ऐसे दम भी मेरी है सीते चमन मेरा, अरे सीते चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, सुभान अल्लाह मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, सुभान मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, आशिक नबी हूँ मैं, वारिस अली हूँ मैं, अरे वारिस अली हूँ मैं रहो न पाएगा, मैं रहो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, बदन मेरा, मैं रहो न पाएगा, हश्र तक कफन में, आवाज आए हश्र तक कफन में। अल्हम्दुलिल्लाह हम मरने के बाद भी अपने वतन की मिट्टी ही में दफन होते हैं, तो हमसे बड़ा वफादार कौन होगा। पानी न मिले तो तयम्मुम करेंगे, तो वतन की मिट्टी से करेंगे ना। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीनें खोद कर देखो हम ही निकलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो नेचुरल के अगेंस्ट मूवमेंट चला रहे ना, फितरत के अगेंस्ट, मैं चंद जुमले कह देता मगर मुझे पता है कैमरे लगे हुए हैं और उलमा की तो कोई बात काट ली तो दाएं बाएं से गायब कर देते हैं, और कुछ करम फरमा चैनल तो ऐसे हैं कि उनकी रोजी रोटी हमारे ऊपर चल रही है। अगर हम और आप खामोश हो जाएं, साइलेंट मूड पर आ जाएं और हमारा और आपका डर दिखाना ना हो, तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। इन्हें भी एहसान मानना चाहिए कि तुम जो आज सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हो तो सत्ता इसी टोपी और दाढ़ी ही का है, वरना गंगा में बहती हुई लाशें किसने नहीं देखी, कुत्तों तक ने नोच लिया लाशों को, मगर साहब वो इंसान, वो इनका भक्त ही क्या जो अंधभक्त ना हो। ऐसे ऐसे अंधभक्त कह रहे ईंटें खा लेंगे मगर वोट वही देंगे। मैंने कहा बिल्कुल दो, तुम्हारी मर्जी है, ईंटें भी मत खाओ, पत्थर खा लो, कोई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मगर हम भी मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम किसी और के भरोसे पे नहीं रह रहे हैं, अजमेर के गरीब नवाज के। वाह वाह वाह, सुभान। बस मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि चलिए हजरत तशरीफ ले आए, नारा लगा दें और मैं अपनी तकलीफ तेजी के साथ खत्म करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए बेसुकून के साथ, आप हजरात बैठ जाएं, अहले स्टेज इस्तेमाल कर लेंगे, आप हजरात तशरीफ रखें, कोई नहीं जाए, तमामी हजरात बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं, सुकून के साथ बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, कलमा शरीफ पढ़ें ज़रा झूम करके, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेजी के साथ मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, जरा एक मर्तबा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और गौर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल, वाहिद जवाब है, जहालत का जवाब कलम से दो, लिंचिंग का जवाब मोहब्बत से दो, और कॉन्स्टिट्यूशनल एतबार से अपनी लड़ाई लड़ो। आज हमने तकरीर में आपको बेसिक तौर पे 3 बातें बताई हैं। बच्चों को लॉयर भी बनाओ, एडवोकेट बनाओ, बच्चों को माशाल्लाह MBBS डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छी बात है। और उन डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट जितने भी मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड तबका है, उनसे कहूँगा कि जैसे उलमा, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अपने अपने हल्के असर में मकतब ये मदारिस बनाते हैं, तुम भी अपने अपने हल्के असर में मॉडर्न एजुकेशन से जुड़े हुए बेहतरीन तालीमी इदारे बना दो। ये अपनी जिम्मेदारी बनाए, तुम अपनी जिम्मेदारी बढ़ाओ, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ।
देखो ये रिश्ता इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ जाएगा और अल्लाह ने चाहा मंजिल हमें हमारे लिए अपने बाजुओं को खोल देगी और अल्लाह पाक ने चाहा नुसरत और कामयाबी हमें हाथ आ जाएगी। हमारी यूथ यहाँ काफी बैठी हुई है, जनरेशन, हमारे नौजवान बच्चे आखिर में जाते हुए बाकी को हजरत तशरीफ ले आए, बहुत दिनों के बाद हसनपुर में तशरीफ ले आए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब बताया कारी जैमन साहब ने कि हजरत की तारीफ ले रही है, लोगों में बड़ा जोश है, जज्बा है सुनने के लिए, काफी दिनों के बाद आए, अब भरपूर सुनेंगे। बस ये 5-10 मिनट की गुफ्तगू सुनने फिर मैं खत्म कर रहा हूँ और ये बात अब मैं आखिर में अपने नौजवानों से कह रहा हूँ, ऐ नौजवानों, तुमने जो मोबाइल खरीदे हैं ये तुम्हारे लिए आजमाइश बन के आए हैं। अगर तुम इसके गलत इस्तेमाल में लग गए तो समझ लो बड़े दज्जाल से पहले छोटे दज्जाल के चंगुल में फंस गए हो। ये तुम्हें तबाही के दहाने पे ले जाएगा। आज देखो 15 साल से लेकर के 25 साल तक के नौजवानों के चेहरे देखो, गुलाब की तरह खिलते थे पहले ये चेहरे, मोबाइल हाथों में क्या आए मुरझा गए, ये कलियां पहले ही मुरझा गई हैं। तुम्हारी सेहतें डैमेज हो गई। 8-8 घंटा नहीं, बाज नौजवान तो मुसलसल 12-12 घंटे मोबाइल का मिसयूज करता है, सेहतें बर्बाद कर रहा है। कितने बच्चों ने तालीम तबाह कर दी अपनी, अच्छा खासा पढ़ रहा था, स्कूल में बेहतरीन नंबर लाता था, अच्छे मार्जिन लाता था, मगर मोबाइल हाथ में क्या आया है कि पास होना भारी पड़ रहा है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, अगर इतना नुकसान हो रहा है तो बगैर मोबाइल के पहले के लोग नहीं रहते थे। तुम जब तक तालीम हासिल करके बेहतरीन इंसान में बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े न हो जाओ, मोबाइल को एक तरफ रख दो और अपना वही देसी वाला मोबाइल चला लो, ताकि तुम देसी भी बन जाओ और विदेशी भी बन जाओ, तुम्हें तरक्की मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, वरना बर्बादी के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। दुनिया तुम्हारी तबाही के लिए रातों में मीटिंग करके मंसूबे बनाती है, तुम पूरी रात इंटरनेट ही चलाते रहे और वो भी गलत इस्तेमाल करते हो। या तो सही इस्तेमाल करो उसका। उलमा की तकरीरें सुनो, नाज़ शरीफ सुनो, अच्छी अच्छी बात सुनो, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज हैं, आप सुनो उनको, एक से एक टॉप की नॉलेज फराहम करने वाली शख्सियतें, उनको सुनो। मगर कहते हैं ना, इन्न नस्ल अम्मारतुन बिस्सू, नफ्स जो है इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। अपने नफ्स पे ज्यादा भरोसा मत करो। शैतान को बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इंसान को भटकाने का, 1000 रास्ते जानता है कि ऐसे नहीं भटकेगा तो ऐसे भटकेगा, इस रास्ते नहीं से इस रास्ते, और उसको इस मामले में सभी का तजर्बा है, वो अवाम हो या खवास हो, तालीम याफ्ता हो या गैर तालीम याफ्ता हो। इस लिहाज से मेरे साथियों, इसका इस्तेमाल सही करो, वरना आप ऐसा करो, इसको एक तरफ रखो, खुद को सही करो और बच्चों को पढ़ाओ। खानकाहे महरम मुतहरा की भी ये आवाज है और यही वॉइस तमाम खानकाहों की है कि आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को, आवाज नहीं आएगी मुझे, बच्चों को जोर से बोलो, बच्चों को जहन बना लो कि हम कहीं नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को, सिर्फ पढ़ाना है। और उसके अलावा ये मन बना लेना मेरे साथियों कि हाँ एडवोकेट बनाऊंगा, डॉक्टर भी बनाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो पायलट भी बनाऊंगा। इस सबसे पहले अपने मदरसा सैयदुल उलूम में कुरान शरीफ जरूर पढ़ाऊंगा। नाज़रा पाकी नापाकी, हलाल व हराम, बुनियादी अकाईद, अकाईद अहले सुन्नत, ये दीनी तालीम के संगम में उस बच्चे को जरूर ढालूंगा, ताकि मेरा बेटा अगर लॉयर बन के अपनी कुर्सी पर बैठे तो सामने वाले की हैसियत देख करके उससे फीस ले, उसे तरस आ जाए। मेरा बेटा अगर डॉक्टर, हमारे संबल में भी कई डॉक्टर हैं माशाल्लाह, उनकी क्लिनिक में मैंने कुरान शरीफ रखा हुआ देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, मेरी दोस्ती की वजह भी यही बनी। मैंने कहा माशाल्लाह मैं जब भी आता हूँ कुरान शरीफ रखा रहता, तो डॉक्टर साहब कहने लगे मेरी माँ ने मुझे तरबियत की है, बेटा कितने ही ऊंचे उठ जाना मगर कुरान का दामन मत छोड़ना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कैसे मिलेगा? बेटियों को जब कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनाओगे, वो जो कर्नाटक की बेटी मुस्कान है ना यार, क्या गजब का ट्रेन किया है। ट्विटर पे एक ही वक्त में 3 नामों से वो बच्ची ट्रेन करती रही, 3 नामों से, नेशनल न्यूज नहीं इंटरनेशनल न्यूज बन गई 3 नामों से। उससे पूछा गया तेरे अंदर ये जज्बा कैसे आया, तेरे अंदर ये हौसला कैसे आया? तो उस बच्ची ने कहा मेरे बाप ने मुझे ये तरबियत सिखाई थी, ये जज्बा सिखाया था। तो घर की तरबियत का ये असर होता। हाँ ये बता दूं, हाँ ठीक है, कारी जयराम साहब ने याद दिलाया, हमारे वहाँ जो अमीर हो जाते हैं ना लोग,
तो बेचारे वो तो अपनी मेहनत से अमीर होते हैं, लेकिन उनकी जो औलाद होती है उन्होंने मशक्कत तो की नहीं है अपने बाप की तरह। वो तो रातों, तो वो सोचते हैं हम पढ़ के क्या करेंगे, हमारे अब्बा पे तो बहुत संपत्ति है। उनके दिमाग में ये नहीं देखते कि मेरे बाप ने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, रातों को जागा होगा, तब जाकर के वो यहाँ तक पहुंचा। वो पढ़ते ही नहीं। ज्यादातर, मैंने कहा था ना, ज्यादातर उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो अपने बाप को रातों में रोते हुए देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। वो मेहनत करते हैं तरफ। और हम तो कहते हैं अमीरों तुम्हें तो और ज्यादा पढ़ना चाहिए, तुम्हें तो, और पढ़ते भी हैं बहुत से अमीर बच्चे जिनकी तरबियत अच्छी होती है और जो मेहनत करते हैं, कद्दो काबिश करते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैंने आप हजरात को ये चंद पैगाम दिए हैं। संभल से लेकर के अपना पूरा इलाका अभी तक अच्छे तालीमी इदारों से खाली है। ये जहन बनमाशा आपसे भी कह रहा हूँ, ये जहन बना करके जाएं और ये मन बना लें कि यार ऐसे ही मर गए, कुछ ना किया तो मरने के बाद भी पछतावा होगा कि यार ये काम तो मैं कर सकता था। ये काम तो मैं, अच्छा खुद नहीं बना रहे तो कोई बना रहा उसी का ताउन कर दें। जी। कोई मेहनत कर रहा उसी के पीछे खड़े हो जाएं, उसको बैकिंग कर दें कि भाई यार अच्छा है, बेहतरीन काम कर रहा है, हमारी बच्चियां भी पढ़ेंगी। वरना याद रखो आज हमारे मुल्क में हिपोक्रेसी चल रही है और हमारे मुल्क में जो कंट्रोवर्शियल हालात हैं इस वक्त आप देख रहे हो, ये दिन आ सकता है जब हमारे इलाके में भी कहा जाए कि ये सर पे हिजाब और चेहरे पे नकाब डाल के आना हमारे मैनेजमेंट रूल के अगेंस्ट है। ये दिन तुम्हें भी देखना। तो ये नंबर ही मत आने दो। जब तुम नंबर देखो, मेरी तरफ देखना जरा, हम लोग इंडिया में लगभग 20% है, मैं टोटल इंडिया की बात कर रहा हूँ, लगभग, कम बेश थोड़े बहुत कम होंगे, पर 15-16% तो कंफर्म है ही। और सिख कितने हैं? 3 से 4%। आज तक किसी की हिम्मत हुई है उनकी पगड़ी की तरफ उंगली भी उठा दे? ऊंचा बोलो। नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि वो सब के सब पगड़ी लगाते हैं, वो अपने रिलीजियस स्टेटस के साथ जिंदा रहना चाहते हैं। जब तुमने खुद अपना कल्चर छोड़ दिया तो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। वो देख रहे हैं कि आजान के वक्त में इनके मोहल्लों में डीजों के आगे रीछों की तरह नौजवान नाचते रहते हैं। वो देख रहे हैं कि जुमे के अलावा इनकी मस्जिदें नमाजियों से खाली नजर आती हैं। वो देख रहे हैं कि इनकी बहन बेटियां मैरिज हॉल में शादी के मौके पर बेपर्दा घूमती हुई नजर आती है, गैर महरमों के साथ फोटो खिंचवाती हुई नजर आ रही है। वो सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए तुम पे उन्होंने उंगली उठाना शुरू कर दी। 3% सिखों ने बता दिया मुत्तहिद होके रहोगे तो इज्जत के साथ रहोगे। ऐसे ही दुनिया वालों कितने ही ईमानदार हो जाओ, न सर का अमामा छोड़ो, न टोपी छोड़ो, और न ही अपनी सुन्नत जो हुजूर ने तुम्हें अता की है उसको छोड़ो। 5 वक्त नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, तुम अपनी मस्जिदों को भर दो। इन्हें अपनी ज़हनियत बदलना पड़ेगी। ये समझ जाएंगे कि ये सो रहे थे अब जाग गए हैं, और जाग तो हुओं को कोई छेड़ता नहीं है। चोरी भी उस घर में होती है जिस घर वाले सो रहे होते हैं। वो जिस घर वाले अलर्ट होते हैं, बेदार होते हैं, उस घर से तो चोर भी रास्ता बदल करके निकल जाता है। और ये तुम्हें करना पड़ेगा। रही हमें मिटाने की बात, हमें खत्म करने की बात, तो मैंने पैगाम हक कॉन्फ्रेंस जो संबल में हुई थी उसमें तकरीर के आखिर में ये शेर पढ़ा था, और मैं आज भी पढ़ रहा हूँ कि जो हमारी नस्लों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये 2 मिसरे सुने कि हमें मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो दुआ दिल से निकलेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।